گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پھولاں کی طرح دشت بالا میں بکھر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، فروا کے لال ابن حسن جان شاہدی، تیرا برس کے سن میں بڑا کام کر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، رو کر سکینہ کہتی ہے ہم سے یہ بار بار، کبرا بتائیے میرے بھیا کدھر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، کیا ہم کہ دیکھو آج قیامت گزر گئی، دلہا سے پہلے ہم ہی بھلا کیوں نہ مر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، کبرا کا تھا بیان لیا ساتھ ہم کو بھی، دلہن کو چھوڑ کر میرے دلہا کدھر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، تا زندگی نہ چین ملے گا ہمیں کبھی، پامال آرزو کو میری آج کر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، تا زندگی نہ چین ملے گا ہمیں کبھی، پامال آرزو کو میری آج کر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، وہ کون سا ستم ہے جو ہم پر ہوا نہیں، ہم جی تمہارے بنا آج مر گئے، پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے، پامال ہو
حضرت قاسم گزر گئے قاسم تمہارے بعد بلا کے ستم ہوئے دربار میں یزید کے ہم ننگ سر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے کیا سن سکو گے حال دل بے قرار کا بنتے ہم تو قید ہوئے در بدر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے اقبال رن میں شاہ زمن اب اداس ہے قاسم کی لاش پر سے جو گھوڑے گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پامال ہو کے حضرت قاسم گزر گئے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے فضا پکاری زینب مسند بچھاؤ آ کر مسند بچھاؤ آ کر بچوں کا سوگ بی بی کچھ تو بڑھاؤ آ کر کچھ تو بڑھاؤ آ کر دلہا دلہن سے ملنے خیمے میں آ رہا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے مسند پہ شاہدی جو ٹکڑے جما رہے ہیں ٹکڑے جما رہے ہیں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے لاشاں اٹھا رہے ہیں لاشاں اٹھا رہے ہیں خوب بھرا یہ منظر کیا سخت مرحلہ ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے پرواہ کا لال رن میں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے لاشے کی جان ہے دیکھو ٹکڑے بدن کے بکھرے ٹکڑے بدن کے بکھرے تو برا دلہن کو کوئی آ کر ذرا سنبھالے آ
कर जरा संभाले, गुलगों बदन हसन का मक्तल से आ रहा है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। क्या दर्द का है मंजर, देखेगी कैसे कुबरा, देखेगी कैसे कुबरा। पामाल हो के आया इब्ने हसन का लाशा, इब्ने हसन का लाशा। सीरी सुखन का चेहरा क्या जगमगा रहा है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। बिखरा हुआ है सेहरा, पामाल गुल सा चेहरा, पामाल गुल सा चेहरा। साबिर सुना रहा है इकबाल का ये नौहा, इकबाल का ये नौहा। गम के जहां में जैसा सूरज नया उगा है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। परवा का लाल रंग में टुकड़ों में बट गया है। गुर्बत कुबरा वावैला, अश्क बहाओ अहले अज़ा, गुर्बत कुबरा वावैला। गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला। देख सकी ना ले न सकी, दिल की ख्वाहिश दिल में रही, दिल की ख्वाहिश दिल में रही। देख सकी ना ले न सकी, दिल की ख्वाहिश दिल में रही, दिल की ख्वाहिश दिल में रही। मन लबों पर है नौहा, मन लबों पर है नौहा, मन लबों पर है नौहा। गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला। बन के दुल्हन बैठी थी अभी, शादी हुई और मांग उजड़ी, शादी हुई और मांग उजड़ी। बन के दुल्हन बैठी थी अभी, शादी हुई और मांग उजड़ी, शादी हुई और मांग उजड़ी। हाय ये कैसा जुल्म हुआ, हाय ये कैसा जुल्म हुआ, हाय ये कैसा जुल्म हुआ। गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला। मेहंदी थी जिसके हाथों में,
खाक है उसके बालों में, खाक है उसके बालों में, मेहंदी थी जिसके हाथों में, खाक है उसके बालों में, खाक है उसके बालों में, हो गई दुल्हन एक बेवा, हो गई दुल्हन एक बेवा, हो गई दुल्हन एक बेवा, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला, गुर्बत कुबरा वावैला। कैसा है जख्मी मंजर पारा पारा मसनद पर, पारा पारा मसनद पर, कैसा है जख्मी मंजर पारा पारा मसनद पर, पारा पारा मसनद पर, रखा है कासिम का लाशा, रखा है कासिम का लाशा, रखा है कासिम का लाशा, गुर्बत कुबरा वावैला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं जब से हम माह अज़ा का चाँद फ़लक पर नमूदार हुआ तो हमारी याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली ख़ान, खादिम तमाम टीम ये कोशिश कर रही है कि शहर हैदराबाद दक्कन के तमाम आशुर खाने और अज़ाख़ाने कैसे आरास्ता होते हैं, सवारी अल मुबारक कैसे उठाई जाती है, तबरुक का एहतमाम कैसे होता है और तमाम तफसीलात से आपको आगाह करा रहे हैं। आशुर खाने की हम खुद ज़ियारत कर रहे हैं, आपको भी ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। तो अब माह मुहर्रम गुज़रते हुए अब हम सफ़र के 40 के अशरे में गुज़र रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं ख़ाबगाह नाले मुबारक नूर खां मज़ार के रूबरू एक गली है जो अहले उनूस से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर भी बदअक़ीदत मंदी से जो लोग सवारी अल मुबारक की इस्तादगी अमल में लाते हैं और मजलिस व मातम होता है, तबरुक का एहतमाम होता है। ये ख़ास बात मैं बारहा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुसैन इब्न अली का करम ये है कि यहाँ पे किसी किस्म का सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ासकर किसी भी कौम व मिल्लत से कोई तफ़रीक़ा नहीं रहता। हर कोई ये चाहता है कि अपनी जानिब से हुसैन इब्न अली की खिदमत में क्या नज़र पेश करें और अपना नजरान अक़ीदत पेश करने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले में इस वक्त जो आशिक़ाना है उसके तमाम खिदमत गुजार से मैं तमाम तफसीलात दरियाफ़्त करके आपको आगाह कराऊँगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या बोल बोलो, आपके अलम किसके है? ऐसा साहब, ये शुरू से हाँ हमारा 13 साल का बच्चा था। मैं जी जेब से हमारा सवारी है, जी जेब से सवार उठा रहा था। अब 60 साल निकल गया। नादर बोल वो फोटो बोला ना, फोटो हाँ यहाँ लगा हुआ है, वो सवारियाँ उठाता हूँ। उठाते उठाते 25 साल भी हो गए, हमारा जबान नहीं है। 25 साल के बाद बोला यहाँ है क्या होना, पैसा होना, ईमान होना बोल के हमारा बोले नहीं सरकार, हमारा पैसा नको, कुछ नको, दौलत नको, आँख का कपड़ा दो, 3 टाइम खाना दो, बस ये शुक्रिया आपका बोल के हम सुनाया। सुनाने के बाद देखो बेटा अब जात ना 11 किलो चावल पकाया पहले स्टार्टिंग। वहाँ से साल को बढ़ते 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 बहुत दोस्त पुलिस मोटर ना रहता था, परमिशन लेता था, पब्लिक कंट्रोल नहीं होता था। अब जरा हमारा लोग थोड़ा लोग क्या करे बोलो तो उन लोगों को भी हाल आ रहा था। उन लोग को भी 3-4 जगह बिठाया। मेरा पब्लिक इधर इधर गया, वो रोड पर तक लाइन रहता था जुमारात जुमा। वहाँ से साल के बाद मुहर्रम होने के 10 मुहर्रम होने के बाद मैं जाके क्या करता था, सरकार का मातम होता बहुत, सवेरे भी होगा, रात में लेडीज़ का होगा। तो स्टार्टिंग में एक बकरा काट के मुझे पातिया दिलाओ बोलकर बोली, तो पकवान वालों को बुलवाया, तो उन्होंने चावल बनाया, वो डेग उठाए तो खुद ब खुद उठ रहा है। उन्होंने नया आदमी है, ये 85 का है, 85 का, तो खुद ब खुद उठाए। तो भाई भैया आकर पूछने लगे है क्या यहाँ पे, क्या चीज़ है, ऐसा दिखाई दे रहा मेरे को।
उसके बाद वो हो गया, पूछ लिया। ढक्कन खोल कर देखो तो पूरा कलियाँ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद 11 किलो स्टार्टिंग बना। उसी जवाब उस टाइम पर दिया है, कुंटलों से बनेगा या मेला मेला लगेगा, दिन दिन को बढ़ते जाएगा, आप लोग देखते रहना। किसी से पैसा नहीं पूछने का, ईमान पर खड़ा रहना। वो ईमान आपका दौलत है, वो ईमान पर खड़े रहना। आप लोगों को मैं दिखाते रहे तो मेला बढ़ते रहता है। तो ऐसा चलते हुए ऐसा आ रहा है साहब। सुनिए साहब, ये आपका नाम और आपका नाम पूरा बोलो। यादया जी, यादया जी। आपका? जंगया। जंगया। ये अलम मुबारक किसके नाम से है? इनका इमाम कासिम, सादिश कासिम, शहजादे क़ासिम के अलम मुबारक है। ज़ाख़ाना जो नाम से मंसूब है वो है हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक, सवारी अलम मुबारक यहाँ उठाई जाती है। ये 1981 से यहाँ पर इस्तादगी अमल में आ रही है। ये लोग तमाम इंतज़ाम करते हैं और यही तारीख़ में अलम उठते हैं। नहीं साहब, उठने का नहीं है, बैठने के आके यहाँ कर लेते। सुनिए साहब, आलम उठाता था, वो खुद ब खुद यहाँ आया है। तो वो टाइम से यहाँ मुकर्रर हो गया साहब। अलम मिले कहाँ से? ये मिला नहीं साहब, खुद ब खुद यहाँ वो आलम उठाता है ना। ऐसा एक उद्यान मल्ल बोल कर ताकत है, तो उनको कैदी बना था। 7 तारीख के दिन ऑटोमेटिक हाथकड़ी खुल गया। और एक भी था, तो उसकी भी ऐसी हो गया, पाशा मियाँ बोलकर। उसके बाद वो लोगों को ये चांस दिया, ये चांस वो लोग अमल में नहीं लाया, छोड़ दिया है। वो चीज़ भैया को मिला है। అది మీరు ఒకసారి తెలుగులో ఏమో మీకు గుర్తుందో అది చెప్పొచ్చు, నేను హిందీలో చెప్పేస్తాను. ఏది ఎలా జరిగింది? దేవుడు ఎట్లా వచ్చిందంటే మేము అల్లము ఎత్తుకుంటుంటే అల్లము 7 तारीख 9 तारीख उठाता था। ఎక్కడ? चाहे सिटी का, वहाँ से उठाते एक दिन 60 साल से भी एक दिन भी नागा, एक साल भी नागा नहीं करा। हमारा को है देखने वाले पटेल साहब को जरा आप भी जरा आइए। ये आशीष ఇల్లు కొన్నావు కదా, ఇల్లు కొన్నాక దేవుడు వీడికి ఎట్లా వచ్చింది అడుగుతుండే ఆయన. చెప్తాడంట, నేను ఇతనితో కనుక్కుంటాను. आप बोलिए। मोहम्मद कैसर है, नादरगुल में आशा खाना है, जो इमाम क़ासिम का अलावा है, जो आज 150 साल हो चुके हैं, जो मेरे दादा परदादा सकड़ दादा से चलते हुए आ रहा, मेरे वालिद कह रहे, अब मैं कर रहा हूँ। जो हमारे नादरगुल में जो है आशा खाना बोल रहे हैं, वो कौन सी तारीख को इस्ताद होता? जी, चांद रात के दिन अलमा बैठते, 7 तारीख के दिन इमाम क़ासिम उड़ते, 9 तारीख के दिन ये नाल साहब उड़ते, 10 तारीख के दिन ठंडे होते। हमारे यादया साहब वहाँ के मुकामी हैं, वतनी हैं, और उनको 13 साल की उम्र से वहाँ से सवारी आती, और उन्हें 13 साल की उम्र से सवारी आज तक उठाते हुए आते हैं। इमाम क़ासिम उठाते, नाल साहब उठाते। तो अभी भी वहाँ उठा रहे हैं? जी हाँ, मौजूद है। ये साहब जाके वहाँ उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं वहाँ पर। और एक जिंदा शाह मदार की दरगाह है, आपके सब ख्वाब में आई हुई है, और आप दरगाह बनाए हुए हैं, उसका भी उर्स करते हैं आप यादया साहब, कि उसके भी ज़िम्मेदार है आप, उसकी भी खिदमत गुजार है आप। यहाँ से यहाँ कैसे आशा खाना आया, ये कैसे करें? ये इनसे पूछिए। यहाँ ऐसा है साहब, मैं सिर का दुकान था रोड पे, हमारा घर नहीं था, कुछ नहीं था। कैसा करना क्या करना बोलो तो एक आदमी बोला दे तो मैं लेते, बोलो तो ले तुम बोल पे बेचे। बेचने के बाद ये पूरा चिलाप वगैरह पूरा करे, सरकारी दरवाज़ा वगैरह नहीं चढ़े, वो किचन बनाए। वो अब जो आशा खाना है वो किचन बनाए थे? किचन बनाए। हमारा रात तमाम नींद नहीं आ रहा, बच्चे आओ बोल के की मार रहा, गिर जा रहा। हम डर के क्या भाई कुछ है घर में, कुछ मामला नहीं दिख रहा, ये बहुत खतरनाक दिख रहा। मैं तो नहीं जाता हूँ घर पे। बोलो तो सरकार फिर हमारा काप में कहा बेटा मैं इतना मैं तुम्हारा चाहता हूँ, हमारा केयर नहीं कर रहे, तुम कहीं को नहीं केयर नहीं कर रहे, आपको मैं बताऊँगा, तुम 2 दिन के बाद बताऊँगा मैं। हमारे सवेरे जल्दी पानी ला लेके हमारा कुछ जबान है अंदर क्या लेते बोलो,
दौलत हो ना बोलो देता हूँ, आपका ईमान बोलो देता हूँ, कौन सा चीज़ पसंद करते हो? ये बोला भाई बोला हमारा कुछ ना को सरकार, आंखों कपड़ा 3 टाइम खाना, दौलत में तो भाई पब्लिक को नहीं देख सकते बोल के सरकार को भी बोले हम नक्को। अभी भी मैं किससे एक पैसे नहीं लेता हूँ। जिस दिन जबान खुलेगा उस दिन आपका यहाँ बंद हो जाएगा। ईमान पर खड़ा रहना, ईमान दिखाना, ईमान पे सब कुछ दिखेगा आपको। अब ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अलम है, अलम जो है ना, अलम आपको यहाँ से निकले सो ले ఆయనకి మీరు ఎట్లా వెళ్ళిండి అని అడుగుతున్నా. నేను మీకు ఈ అలం అదే टायर साहब तो ये घर बनाया, अपने लिए बनाया, किचन रूम प्लेटफॉर्म बनाया, बनाने के बाद भैया को बजारे में आके बोलने लगे तो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहे तो लेबर क्या करी, वो कोने पे बेड डालने के लिए मट्टी खींच रहा था, संदल की खुशबू गुलाब का खुशबू आने लगे। तो उसके बाद फिर भी नहीं समझा भाई, नहीं समझे तो एक अम्मा है, उनको हाल आता है, उनके घर को हलम के साथ 1 बजे 1:30 बजे जाके उनको सतारा करती, जाओ उन्होंने नहीं समझ रहा, आप तो भी समझाओ, नहीं समझ रहा, क्या बात है, घर का ही सब 25,000 में घर खरीदा, जब वो पैसा भी नहीं भरा, 3 महीने का टाइम दिया, जैसा घर लिया फिर घर चालू शुरू हो गया, काम चालू चल रहा। आप लोगों को कहाँ से दिख रहा, कैसा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना भी आप लोगों को आके बोले तो भी नहीं समझ रहा है। आकर बात क्या है, मैं इमाम कासिम हूँ, क्या समझ रहे, देख एक कहना रख रहा हूँ, उसको पहुँच साफ सफाई से जैसा रखेगा तुम देख लेगा। आप लोग ईमान पे खड़े रहो। वहाँ से मट्टी दो, बोला साहब मट्टी दिए तो गुलाब का फूल मेरा हाथ में रख। उस तारीख से मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मेन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ के निगहदाश है तो ये अलम मुबारक उठाते हैं, ये तो तमाम चीज़ें, तो ये आज ही की तारीख को आप लोग ये मजलिस करके ये यहाँ तमाम चीज़ें करते हैं। ले सर डेट फिक्स ले सर, अल्लाह కాపుగాల మాకు డేట్ లే సార్ ఫ్రీ సార్, మాకు డేట్ ఇస్తే డేట్ మీద చేస్తాం మేము. ఎవరు ఇస్తారు, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది లేకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారు సార్, వాళ్ళు ఇస్తారు. ఏంటంటే మన కాడ మంచిగా ఫ్రెష్ మంచి జగ ఉంటుంది కదా, అట్లని అక్కడ మేము వాళ్ళ డేట్ ప్రకారం చేస్తాం. ఈసారి జర లేట్ అయింది సార్, మా ఇంట్లో కొద్దిగా వేరే పని ఉండే, దాన్ని బట్టి వీళ్ళు డేట్ ఇచ్చుకోం, ఇవాళ మాకు ఆ టైం కలిసి వచ్చింది, ఇవాళ చేస్తున్నాం. तो अब इस वक्त जो खाना पक रहा है ये कितने कुंटल का है? आज 5 कुंटल का है साहब। अभी तो अब मजलिस कितने बजे शुरू होती? अभी 2 बजे के टाइम दिया सर। यहाँ कौन सी क़िबला या कौन सी ग्रोह आती? ये मासूमी आता है तो अच्छा मुख्तार भाई। नाजरीन ये तमाम तफसीलात मैं आपको आगाह करवा रहा था। ये कहने का मकसद ये है कि बारहा इनके घर में जो है इंतबा किया जा रहा था, इत्तला दी जा रही थी, उसके बाद इनके ख्वाब में आकर बताया, उसके बाद ये इस्तादगी अमल में आई। और हर जुमा और जुमेरात भी ज़ियारत के लिए ये अज़ाख़ाना खुला रहता है। जो भी मन्नती लोग आते हैं वो तमाम आके आप ज़ियारत कर सकते हैं और मन्नत मुरादें मांगते हैं और पाते भी हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और बारहा आप नोट कीजिए कि नूरखां बाज़ार रूबरू ख्वाबगाह नालू मुबारक, रूबरू ये गली है, गली में जाने के बाद आपका पूरा नाम यादया जी जंगया जी, यादया जी जंगा जी का आप अगर आशाखाना आशुखाना शदद क़ासिम पूछेंगे तो बता देंगे। साल भर जुमेरात जुमे के रोज़ वक्त क्या है उसका? 7 बजे, शाम 7 बजे से 8-9 बजे, 9 बजे तक हर जुमेरात और जुमे के रोज़ 7 से 9 तक आप ज़ियारत कर सकते हैं। और आज मखसूस मजलिस हर साल की तरह होती है, इस साल थोड़ी सा ताख़ीर हो गई है। और ये मजलिस में अंजुमन मासूमीन का मातम होता है, मजलिस होती है, तबरुक का एहतमाम होता है। इस वक्त भी तबरुक का एहतमाम किया गया है। इन्हीं की ज़बानी है कि 5 कुंटल का तबरुक का एहतमाम है और ये किसी से 1 दिरहम व दिनार नहीं लेते और ये खिदमत अपनी समझ के करते हैं। ये तमाम तफसीलात से आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आगाह करवा रहा था। मैं आपकी खिदमत में जैसे मारूज़ा करता हूँ कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद और गम हुसैन के सदक़े में हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और
अज़ाए हुसैन, मातम हुसैन, गम हुसैन, मदहेली के फितना फसाद बर्पा करने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुखसत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाजरीन, ये भी साहब इस सज़ाख़ाने से वाबस्ता है, कितने बरस से है और इनको कैसे इनकी मन्नतें मुरादें आई हैं और इनको क्या इत्तला मिली, कैसे ये पाते हैं, ये तमाम तफसीलात से मैं आपको दरियाफ़्त करवाता हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाब है। मेरे को जो हमारे एक फ्रेंड है उन्होंने लेके आए थे, 30 साल पहले लेके आए। उस दिन के बाद हर जुमेरात आते हैं हम लोग। यहाँ कोई चीज़ की डिमांड नहीं होती है। जैसा ऊद का धुआं फैलता है ना, वैसा बिज़नेस में बरकत होती है। जब भी हम आते हैं हमको पूरा विश्वास है, किधर भी कोई खंजर भी लेके आए तो हम डरते नहीं। कासिम हुसैन साहब का नाम लेके आगे ठहरते अपनी ईमानदारी से। वो पीछे पलट के चले आते, कोई हमारे पे वार नहीं करते। दुश्मन बहुत है लेकिन कोई हमारे सामने नहीं आता। बहुत यकीन है हमको। यहाँ बहुत 30 साल के इनके पास आ रहे भाई साहब के पास। यहाँ बहुत यकीन है, यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। नाम बताइए। मोतीलाल। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है। हम भी लगातार आते हैं, 1-2 साल से समझो वीकली नहीं आ रहे, वैसा जुमेरात के दिन हम कैसा भी आते थे इधर। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं हैदराबाद में? यहाँ चिकड़बली में रहते हैं। आप भी सेम चिकड़बली। माशाल्लाह। ये आप गौर फरमाएं नाजरीन कि मैं बारहा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम जो लोग यहाँ के अक़ीदतमंद है, अब ये ताख़ीर की वजह से तमाम लोग यहाँ आते हैं और सवारी उठाई जाती है। ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवा रहा था।